हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शंस 9 और मेरा नाम है नीतीश सिन्हा। First of all, I really want to thank everybody who liked my videos, who watched my videos. If not subscribed, I hope they will definitely subscribe next time, and for giving me the support to make this another interesting and learning video. So I hope I'm adding some input through my channel so that I can share my knowledge which I use for my personal trades, and probably I can make something better for others also. This is the motive of my channel. So to start with, so आज का topic is very interesting. It's the best information what I can share with everybody. This is my personal view because I use this indicator for my trades, whether it is quick trade, daily trade, or if I keep it for some time, which is called a swing trading. So this indicator is moving average, and I'm sure there are a lot of videos on moving average and crossovers. So I will not take much of time in explaining what is moving average, but before we start the video, before you understand why we use moving average and how we use moving average, the first is what is a moving average. So it's in a very simple language. Moving average का मतलब हो गया कि पिछले prices क्या रहे हैं उतने number of days में. That's it. There is no a lot of topics on this moving average. There are a lot of calculations. So basically we have to understand it simply. हमको हर कुछ simple सीखना है और उसको use करना है for trades. We don't have to get into the complex thing. So मूविंग एवरेज का मतलब क्या है बेसिकली कि नंबर ऑफ डेज में पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो, उन दिनों में उस स्टॉक या इंडेक्स की एवरेज प्राइस क्या रही है. सो बोलते हैं ना कि पिछले आपके जो कर्म है वो आपके सामने आते हैं, आपको फल देते हैं. दिट इज व्हाट इज मूविंग एवरेज. आपके अगर कर्म अच्छे हैं आपको अच्छा फल मिलेगा, आपके कर्म अगर खराब है तो आपको खराब फल मिलेगा. व्हाट इज मूविंग एवरेज इन अ वेरी सिंपल हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज. सो अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे करें इन टेक्निकल एनालिसिस में, so that we get a good trade, in case we want to make some quick trade or a trade for some number of days. We can make good money from moving average crossover. This is the best technical indicator, I assure you. So let's start. सबसे पहले हमने क्या करना है, let's open our Chrome and open our trading view, जो मैंने to save the time of the video already opened. उसके बाद क्या करना है, बेसिकली आपको select any stock. This will work on any stock, any index. सो हमसे हाइपोथेटिकली वी सजेस्ट सेलेक्ट निफ्टी 50. सो हमने यहाँ पे निफ्टी टाइप करके मैंने रखा है और इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, एंड दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50. सो लेट्स ऐड द इंडिकेटर. सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कैसे इंडिकेटर ऐड करते हैं. वी हैव टू गो हियर ऑन द टॉप, सेलेक्ट इंडिकेटर एंड टाइप MA एंड देन क्रॉस. सो ट्रेडिंग व्यू में यू गेट दिस MA क्रॉस. मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है एज आई डिस्कस इन द लास्ट वीडियो दैट this will come like this, like a plain star. Once you select this and just click on the star, it will turn out to yellow. That means it's already added in your favorites. तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको ऐड कर लेना है. So जैसे मैंने इसको ऐड किया, you see on your chart this MA is added. What we have to do is we have to add once more. So ये बहुत कम लोग आपको बताए रहेंगे कि कैसे we will use this moving average simple तरीके से to get the best trade. And I assure you, any other indicator may give you wrong signals, but moving average crossover will definitely make you earn money by giving right signals. So हम इसको एक बार वापस से MA cross को हम ऐड कर लेंगे. That's it. कुछ काम नहीं है, it's that very simple. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं. So moving average basically नंबर ऑफ डेज पे जो ट्रेड होते हैं, हमने सीखा कि लास्ट टाइम आप जो डिस्कस कर रहे थे दैट 9 days हो, 18 days हो, 50 days हो, 200 days हो. दीज आर द typical dates which are used to calculate the moving average. So अगर हम कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं या शॉर्ट टर्म अगर हमको मूवमेंट देखना है किसी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस का, सो हम उसको 9 days के बेसिस पे उसको इवैल्यूएट करेंगे. अगर हम उसको थोड़ा लंबा व्यू देखना चाहते हैं तो हम उसको 18 days के व्यू पे इवैल्यूएट करेंगे. सो 18 इज नथिंग, मतलब उसमें कुछ there is nothing great about 18 or something mathematical about 18. It's just that I use 18 days moving average and it works best for me. So you can use 20, 25, that's up to you, but 18 works the best, what I have noticed. So you get a good trade once you use these two indicators, two moving averages, I'm sorry. So 9 days and 18 days is what is we are going to use
in our first indicator. So हमने क्या करना है, MA Cross में जाना है and we just go here and click setting. Setting में जाना है, we have to do some changes. मैंने already किया हुआ है. So what you do is in the input section you have to come, just time frame will be chart, then gaps you have to keep it ticked. Short moving average length you have to first keep it. So short moving average length का मतलब क्या होगा in basic language, very simple language, mathematical language. जो कम दिनों का है उसको हम शॉर्ट बोलेंगे, जो थोड़े ज़्यादा दिनों के उनको हम लॉन्ग बोलेंगे. तो सबसे हम एक शॉर्ट को एक क्रॉस को हम कंपेयर करेंगे कि वो स्टॉक प्राइस उसका कैसे मूवमेंट होगा उसके बेसिस पे. तो हमने क्या करना है, शॉर्ट मूविंग एवरेज की लेंथ को 9 रखनी है और लॉन्ग मूविंग एवरेज की लेंथ को 18 रखनी है. उसके बाद हमने कुछ चेंजेस करना है. यू कम हियर, सब टिक रहने देना, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट डू सम चेंजेस. So 9 days, this is all color preferences, you can use any color, I'm just using it with my color preferences. So what I will do is, मैं 9 days को पहले तो यहाँ पे ना इसको green select कर लेता हूँ, because जो short term moving average है that will give you a quick trade, so वो आपको immediately बताएगा आपके price का movement. So let's keep it 9 days as a green. और जब यहाँ पे आओगे वो just come down, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे lines दिखेंगे, just come on the bold one so that it comes very clear on your chart. तो यहाँ पे आ जाओ and इसको select कर लो with the color green and just come on the second plot. इसको मैंने 18 days का मैंने red color रखा है for no other reason, you can keep it any other color. So chart में अच्छा दिखे, so I have kept it red. Similarly मैं आऊँगा नीचे में, select red, come down and select this, the last one, this one, the bold line, so that it is clear on the chart. So ये दोनों कर लेने हैं. And as we discussed last time also, कि एवरी इंडिकेटर को हम क्या करेंगे, सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे, सो दैट एवरी टाइम वी डोंट, व्हेन वी यूज दिस इंडिकेटर, यू नो, सो दैट टाइम वी डोंट हैव टू अगेन चेंज द इनपुट्स ऑफ द इंडिकेटर. सो इसको हम सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे, सो इट विल ओपन नेक्स्ट टाइम फॉर द सेम इनपुट. अब हम इसको कर देंगे ओके. सो जैसे हमने ओके किया, हमारे पास ये 9 days एंड 18 days प्लॉट हो गया है. नाउ हमको दूसरा अब कंपैरिजन करना है. सो व्हाट हमने दूसरा करना है, दैट हमने वापस यहाँ आनी है इनपुट्स में, द सेकेंड इंडिकेटर का सेटिंग में जाना है, उसको फिर से MA Cross ही इंडिकेटर, सेम इंडिकेटर, बट वी विल चेंज द डेट्स ऑफ द मूविंग एवरेज. उसके डेज हम चेंज कर देंगे. सो हम क्या करेंगे, फॉर अ बेटर ट्रेड हम क्या करेंगे, हमने 9 और 18 को कंपेयर किया, अब हम क्या करेंगे, वी विल यूज 45 days एंड 200 days मूविंग एवरेज. सो 45 days इज योर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एंड 200 days इज योर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज. वेरी सिंपल, मतलब 45 दिन की हो गई नज़दीक की और 200 दिन हो गया दूर का. सो दैट इज लॉन्ग मूविंग एवरेज एंड दिस इज शॉर्ट मूविंग एवरेज. एंड देन वी कम टू स्टाइल. सिंस वी ऑलरेडी सेलेक्टेड रेड एंड ग्रीन, सो फॉर अनदर कलर आई वुड टेक से येलो ले लेंगे और नीचे आएंगे और लाइन में इसको बोल्ड कर लेंगे, सो दैट येलो कम्स क्लियर ऑन आवर चार्ट. And in 200 days moving average, let's say this color, ये color ले लेते हैं, this is just by choice, और इसको लेके again टिप करते हैं and then we just come on the input and save as default. That's it, your work is done. We have added 2 types of moving averages. One is 9 and 18 and 45 and 200. अब हमको use कैसे करना है? What is the idea of using these 2 moving averages? सो सबसे पहले 9 days का मूविंग एवरेज इज ए शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, वेरी सिंपल. 18 days 9 days से ज़्यादा है, इसलिए वो 9 और 18 के हिसाब से वो 18 days इज द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग मूविंग एवरेज. दूसरा इंडिकेटर जो है विच इज़ 45 days, यानी कि 45 days हो गया शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एंड 200 days हो गया लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज. तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वेरी एफिशिएंटली, व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम क्विक ट्रेड के लिए 2 छोटे जो टाइम फ्रेम्स के हैं मूविंग एवरेज उनको यूज कर रहे हैं, और टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक और द इंडेक्स और द वीकनेस ऑफ द स्टॉक और इंडेक्स, वी आर यूजिंग 2 मूविंग एवरेजेस विच इज 45 एंड 200, so that if we want to carry the trade, these 2 indicators with these 2 moving averages will help us take the right trade in the right direction. So अब हम देखते हैं, let's come to Nifty 50 and let's see how this work. So moving average, अगर 9 days का moving average, so the short term moving average, this is very important. If you just want, you may get confused, you can just write it down.
द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज व्हेन इट क्रॉस द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, मतलब जो नज़दीक की जो मूविंग एवरेज है उसने अगर अपने दूर की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, दैट मीन्स वो स्टॉक या इंडेक्स बुलिश व्यू बना रहा है, मतलब उसमें ऊपर का मूवमेंट आने के इंडिकेशंस हैं। सिमिलरली अगर 45 डेज का मूविंग एवरेज, मतलब जो स्लाइटली लॉन्गर पीरियड का मूविंग एवरेज है, वो अपने भी दूसरे लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, दैट मीन्स उसमें एक अच्छा स्ट्रेंथ बिल्टअप हो रहा है, इट इज गोइंग इन अ बुलिश स्ट्रेंथ एंड बुलिश ट्रेंड, सो दे कैन कीप दिस ट्रेड फॉर सम फॉर टेकिंग स्विंग ट्रेड्स, और 3-4 डेज के लिए आप इसको कैरी कर सकते हैं, यू विल मेक गुड मनी। वाइस वर्सा, अगर आपका लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, अगर आपको डेली ट्रेड लेना है एंड इफ योर 18 डेज मूविंग एवरेज एंड योर 9 डेज मूविंग एवरेज, अगर 9 डेज नीचे की तरफ आ रहा है मूविंग एवरेज आपका 18 डेज से, मतलब द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज नाउ लेसर देन द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। ध्यान से सुने, द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज नाउ क्रॉसिंग डाउन और नीचे आ रहा है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के, दैट मीन्स कि उसकी इनिशियल जो मूवमेंट है वो नेगेटिव या बेरिश की तरफ जा रही है। सो अगर हम डेली ट्रेड लेना है या क्विक ट्रेड लेना है फॉर सम मूवमेंट इन स्टॉक्स और इंडेक्स की प्राइस पे, तो वी कैन वॉच दिस एंड वी कैन टेक दैट ट्रेड। सिमिलरली ऑन अ लार्जर स्केल, मतलब आई एम ऑन अ बिगर चार्ट, अगर मुझे कैरी करना है कोई सेल पोजिशन में, तो अगर मैंने देखा अगर मेरी 45 डेज की मूविंग एवरेज अगर 200 डेज के नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें बेरिश एक वीकनेस बन रहा है स्टॉक और इंडेक्स में। So you can carry a short trade watching this breakdown. So as I say always that indicators are only used as an indication in the market. So this may sometime fail, or this may most of the time work. That we will see, and how we take the trade, that we have to understand through this video. So हम आते हैं काम करते हैं, पहले let's understand if we take a short term trade and we come in a 5 minutes चार्ट। सो आपको कहाँ आना है, यहाँ पे आना है, वेरी सिंपल, एंड जस्ट क्लिक 5 मिनट्स। अब हम आ गए 5 मिनट्स पे। नाउ दिस चार्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, जस्ट क्लिक ऑटो, नाउ दिस परफेक्ट। सो अब आप देखें, नाउ इन एट 3 o'clock टुडे व्हेन द मार्केट वाज अबाउट टू क्लोज, ये मूविंग एवरेज जो 9 डेज का मूविंग एवरेज था, जो हमने ग्रीन में उसको प्लॉट किया हुआ है, इफ यू सी हियर, यहाँ पे द ग्रीन वाले में, सो ग्रीन जो लाइन थी उसने रेड लाइन को क्रॉस किया। सो जहां पे ये क्रॉस हुआ है, ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ओवर, जो हम सीखने वाले हैं और इसी से हम ट्रेड लेंगे। दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको यू विल मेक मनी इफ यू कैच दिस पॉइंट प्रॉपरली एट द राइट टाइम। सो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जिससे ये पॉइंट आया, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर। जैसे 99 डेज ने 18 डेज को क्रॉस किया, Nifty was at 18,050 at the time 3:10. So 3:10 पे Nifty was at 18,050 and 3:15 पे Nifty came down till 17,980. So almost आपको 70 रुपए का मूवमेंट मिल गया, which is a very good trade. In for 15 minutes you made गुड मनी। सो 5 मिनट की चार्ट को आप यूज कर सकते हो फॉर टेकिंग इंट्रा और डेली ट्रेड्स और फिर क्विक ट्रेड्स। आई विल ऑलवेज सजेस्ट यूज 5 मिनट्स टू टेक क्विक ट्रेड्स। आपको प्रॉफिट मिलता है निफ्टी में अराउंड 50 से 100 पॉइंट्स का, यू शुड टेक इट एंड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। सो ये हो गई 5 मिनट्स की चार्ट। नाउ इफ यू सी, लेट्स सी 5 मिनट्स में कहीं ब्रेकआउट आया था, ओके लेट्स सी। सो मार्केट आज गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये 9 डेज का मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा था। जैसे ही अपने 9 डेज मूविंग एवरेज पे आया, आई होप इट इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये जैसे 9 डेज के मूविंग एवरेज पे आया, ये थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। दिस इज 5 मिनट्स चार्ट। सो आपको 9:25 मिनट 9:30 मिनट में मार्केट इसी रेंज में खेलता रहा, और जैसे ये मार्केट में एक 9 डेज के मूविंग एवरेज में एट द टाइम ऑफ 10:40 और 10:35, इफ यू सी द टाइम हियर, डाउन 14 सितंबर एंड 10:40 AM। सो 10:40 AM में क्या हुआ है, द ग्रीन लाइन हैज क्रॉस्ड द रेड लाइन, मतलब ऑन क्विक ट्रेड 9 दिन का जो मूविंग एवरेज था उसने 18 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। सो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज क्रॉस था लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। ये जो ब्रेक मिला उसके बाद आप देखो 10:40 10:50 यहाँ तक आपको मिल गया। सो यू मेड अराउंड, और एनीबडी who's used this crossover at that time
When Nifty was 17,916, it made a high of 18,046. So I just say, if you want to take quick trades, you should exit in between 75 or 100 points or 50 to 100 points. उस पे आपको exit कर देना चाहिए, and by say around 10:30 to 12:45, 2 घंटे में आपने यहाँ पे पैसे बना लिए. This is the efficiency of moving average. अब हम move on करते हैं 15 minutes chart पे. So हम जैसे हम 15 minutes chart पे देख रहे हैं, see why we are not using talking about 45 and 200 on smaller charts, because for 45 and 200 we'll use it for a, अगर मुझे स्विंग ट्रेड लेना है, so we'll use it on a hourly or a daily chart, उसको वहाँ पे एनालाइज करेंगे. यहाँ पे अभी हम क्विक ट्रेड ले रहे हैं, so we want to make a money quickly, so we have to exit or enter in the trade as per the short term moving average. So अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, if you see here, यहाँ पे exactly 7980 पे यहाँ क्रॉसओवर हुआ एंड वी मेड अ हाई ऑफ 18,080. सो आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ exactly मिल गया. सो अभी भी आप देखो 50 मिनट्स चार्ट पे द रेंज इज दिस. जैसे ये प्राइस ना ये कल अगर मार्केट खुलता है एंड इफ यू सी कि दिस क्रॉस ग्रीन लाइन और द 9 डेज का मूविंग एवरेज इज कम डाउन द रेड लाइन, मतलब ये क्रॉस डाउन की तरफ कर रहा है इन केस द मार्केट ओपन्स डाउन टुमारो. So you will see the market coming at this point again 17,916. It's a very strong big candle, तो यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा होल्ड करेगा, और एल्स मार्केट एक सपोर्ट देगा 17,800 पे. सो इफ यू सी कल अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है 17,980 के नीचे खुलता है, and there is a क्रॉस डाउन नीचे 9 डेज और 18 डेज का, you can easily make a short position and you can first 50-100 पॉइंट्स पे या 50 to 100 पॉइंट्स में प्रॉफिट ले लेना. इन केस इफ ब्रेक्स 17,900 और 875, you can get Nifty, you can expect the Nifty to come down till 17,820 for tomorrow. And vice versa, अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता है निफ्टी कल 18,1780 के ऊपर, तो you can see a further movement in Nifty because ये ग्रीन लाइन इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा. So this is what is short term पे. Now if you want we can use a 1 hour पे. So 1 hour पे हम क्या देख रहे हैं, it's already almost at the cross down पे. So now you're using a bigger chart. So bigger chart क्या बता रहा है कि probably if you keep the position for a day or two, what is the what probability is there for the trade. So अगर कल ये वापस hourly chart पे आप ध्यान देना कल, if you're using this indicator and if you watch this video tonight, so अगर ये 9 days का 18 days के moving average के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, so कल आपको निफ्टी में वापस से एक नीचे का लेवल दिखेगा which is around 17,850, 860, 875 जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपको वहाँ तक निफ्टी का लेवल आता हुआ दिखेगा. सो नाउ इफ यू कम ऑन द आवरली चार्ट, सो आई ऑलवेज सजेस्ट यूज आवरली चार्ट्स. इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो आई हैव डिस्करेज्ड टू यूज 5 minutes and 15 minutes चार्ट्स, क्योंकि बहुत स्मॉल कैंडल्स बनते हैं, बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट होता है. एवरी 5 minute एक कैंडल फॉर्म होता है, 15 minutes में कैंडल फॉर्म होता है, which may confuse you. So this is my personal view. I mean, I respect all traders' view, and a lot of people use 5 minutes and 15 minutes. My personal view is that you should take a trade आराम से, discipline से, and wait for the maximum profit. And maybe you don't have to get into the loss also. But since you take smaller trades, so immediately आपको loss ही book करना पड़ता है. In this hourly chart पे, you can hold on to your position for some time before you exit or you take some stop loss. So if you see, आप देखो now, this is on 8th of September. Now this is for a bigger money. See how it works, hourly chart. So hourly chart बहुत खूबसूरत है moving average crossover के लिए. Now we will analyze 9 days and 18 days and 45 days and 200 days. Now because we are looking for some positional trade. So अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे crossover हुआ. You can get this cross line here. यहाँ पे crossover हुआ when Nifty on 8th of September crossed the 9 days moving average, crossed the 18 days moving average, which is 17,680. And today we are on 14th of September and we almost made a high of 18,070. So basically कैसा है, जब तक ये प्राइस निफ्टी की अपनी 9 days के ऊपर ट्रेड कर रही है, we have to be in the long position. जैसे ये प्राइस अपनी नीचे आएगी, we have to exit from the trade. This is what the fundamental of this moving average. तो इसके ऊपर ब्रेकओवर पे हमको बाई करना है, या फिर कहीं ब्रेक डाउन हो रहा है. फॉर एग्जांपल हम पीछे चलते हैं. ओके, सो यहाँ देखिए 9 days एंड 18 days का ब्रेक डाउन हुआ, मतलब 9 days ने 18 days को नीचे की तरफ आए. सो ये जब नीचे की तरफ आता है, देन वी हैव टू मेक अ सेल पोजीशन. और जब तक ये प्राइस इस
ग्रीन लाइन के नीचे रहती है, वी हैव टू बी इन द ट्रेड. जैसे ये ग्रीन लाइन के ऊपर आती है विच इज 9 days का, वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड एंड टेक प्रॉफिट वॉट एवर बाय गॉड ग्रेस वी हैव गॉट. सो ऐसे हम शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं. सो ये हो गया अभी हमारे से इंट्राडे ट्रेड के लिए. सो अगर मुझे ये ट्रेड कैरी करना है, सो व्हाट analysis, what we can understand from the moving average and how we can become a good trader, a professional trader, and we'll make good money by keeping our positions for some more time with confidence. So अब इसमें क्या है, हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो क्रॉस डाउन हो रहा है, तो हमारे लिए एक सिग्नल क्या हो गया कि फॉर अ डे निफ्टी सीम्स टू गो ऑन अ बेरिश व्यू फॉर अ इंट्राडे बेसिस और प्रॉब्ली ओपनिंग बेसिस पे ये हो सकता है. सो अब हम क्या देख रहे हैं, ये 45 डेज का जो मूविंग एवरेज है विच इज़ द स्लाइट और मिड टर्म जो मूविंग एवरेज है, ये अभी भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि इवन दो शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका आज की वजह से या डो जोन्स आज कल जो करेक्शन आया उसकी वजह से शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका थोड़ा वीक हुआ है और हो सकता है, बट इसका अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो निफ्टी इसका 45 डेज का मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे भी दिख रहा है is 17,860. तो जब तक निफ्टी अपने 45 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग. सो अगर हमें कुछ पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो हमको कब लेनी है, जब ये निफ्टी 17,850 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा. जब ये 17,850 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो दो चीज़ें होंगी. एक ही जो ग्रीन लाइन और जो रेड लाइन है ये नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, दैट मीन्स अ ब्रेकडाउन इज कन्फर्म, और उसका मिड टर्म जो मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो इसका मतलब उसमें वीकनेस आने के चांसेस हैं. सो हम इसको टारगेट की तरफ भी ले सकते हैं. सो अभी आप देखो यहाँ पे है, सो फर्स्ट टारगेट हम कहाँ पकड़ेंगे, 17,860 पे. सो ये 45 डेज का मूविंग एवरेज है. अगर कल निफ्टी नीचे की तरफ ओपनिंग होती है एंड दिस कम्स डाउन, द फर्स्ट सपोर्ट निफ्टी विल गेट एट 17,850. So keep this in mind. If you're watching this video, you can verify it in the morning. पहला ही सपोर्ट निफ्टी को 17,850 से मिल जाएगा. अगर निफ्टी ने 17,850 पर ट्रेड करना शुरू किया और एक घंटे में उसकी क्लोजिंग 17,850 की होती है, बिकॉज दिस इज एन आवरली चार्ट. सो अगले एक घंटे की क्लोजिंग अगर 12:30 से 1:30 बजे तक अगर उसकी क्लोजिंग 1:30 क्लोजिंग उसकी 17,850 के नीचे होती है तो निफ्टी आपको वापस से आपको एक पोजिशनल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज 200 डेज मूविंग एवरेज जो हमने डाला हुआ है, विच इज 17,650, आपको निफ्टी इन कमिंग डेज आता हुआ दिखेगा. सो नीचे आपको 17,650 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. आपका बीच का जो पीवट पॉइंट है दैट इज 17,850, और जो आपका रेजिस्टेंस है विच इज आज का हाई जो है 18,090. सी वेरी स्मार्टली नाउ हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ मूव कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं. अब हमने यहाँ मूविंग एवरेज की बेसिस पे विदाउट यूजिंग एनी ऑप्शन डेटा, विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर, RSI और अदर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर, हमने सिर्फ ये मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज को कंपेयर करके हमने ये पता कर लिया है कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है, किसके ऊपर वापस से निफ्टी स्ट्रांग होगा, हमारा पिवट पॉइंट क्या है, अगर हमारे को पहला सपोर्ट कहाँ मिलेगा और हमारे को स्ट्रांग दूसरा सपोर्ट कहाँ मिलेगा. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, comparing to short term moving average and comparing to mid term and long term moving average which is 45 days and 200 days. अब हम आते हैं डेली चार्ट पे. सो इफ आई हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट कि ये कैसा है निफ्टी का ट्रेंड. नाउ इफ यू सी व्हाट इज हैपेंड ऑन अ डेली चार्ट, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट यूज आवरली और डेली चार्ट. दिस विल मेक यू अ बेटर ट्रेडर. ये थोड़े थोड़े पैसे के मूवमेंट के लिए यू गिव लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ हेडेक्स. इससे कहीं अच्छा है कि आप एक अच्छा, एक स्मार्ट और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बने एंड यू मेक सम गुड मनी. सो व्हाट इज हैपेंड हियर, सी on daily chart which we can use it for swing trading or 3-4 days. अभी ये देखिए 12 सितंबर को यहाँ क्रॉसओवर हुआ है when Nifty was 17,675. डेली चार्ट पे क्रॉसओवर होने का मतलब इट्स अ गुड साइन एंड विच निफ्टी हैज fulfilled and it has come from 17,000 से 700 से 18,100 तक का. See, so you made good profit if you keep it for some time. If you give if you respect these indicators and use this knowledge, it will make you earn good money without coming in and going out quickly. अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. अभी भी निफ्टी अपने उसका जो मूविंग एवरेज है विच यू कैन सी ऑन द ग्रीन लाइन यहाँ पे 17,790 है. तो जब तक निफ्टी 17,790 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी स्टिल इन अ बुलिश ट्रेंड में है.
अभी भी निफ्टी का स्ट्रेंथ है निफ्टी में ऊपर जाने का. सो वी विल नॉट मेक अ पोजिशनल sell position here. We will wait for it to come down below its 9 days moving average, which is short term moving average. Then only we will look into it कि हमें इसमें शॉर्ट ट्रेड लेना है कि नहीं. तब तक हमारे निफ्टी का ट्रेंड इज पॉजिटिव. ठीक है. अब आप एक और चीज देखो, नीचे आप आओ, देखो 45 डेज का मूविंग एवरेज विच इज पेंटेड इन द येलो कलर, प्लॉटेड इन द येलो कलर, इज जस्ट क्रॉस्ड at 16,977. See, this is the benefit of using a bigger chart. जिसने भी ये चार्ट को एनालाइज किया एंड दे टुक अ ट्रेड इस क्रॉसओवर को देख के, बिकॉज दिस इज अ मिड टर्म मूविंग एवरेज टू अ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज. सो इसमें आपको क्या मिला है, 17,000 पे जिसने पोजीशन बनाई थी उसको आज 1,000 पॉइंट का मूवमेंट मिला. दिस वाज ऑन 6th of September and today is 14th of September. So this is the beauty of knowledge. This is the using trades for bigger money. So I personally always, I repeat myself, I personally honestly, and I do it, and I suggest that a lot of youngsters are there and a lot of people are there, hard earned money is there. I would मैं आपसे बहुत strongly इसको recommend करूँगा that you use this daily chart and analyze this indicator, जो मतलब मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर है. दिस विल मेक यू अ वेरी गुड ट्रेडर. यू डोंट हैव टू फॉलो एनी चैनल फॉर दैट. सो आप यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता था, थोड़ा नीचे आया है, कोई बात नहीं, बट यू आर स्टिल कॉन्फिडेंट बिकॉज दिस इज अ क्रॉसओवर. और देखो कैसा मूवमेंट दिया. यहाँ पे हमने ट्रेड लिया व्हेन प्राइस वॉज 17,580, नो प्रॉब्लम. थोड़ा नीचे आया, हमने 17,540 पे ऐसे 30-40 रुपये नीचे आया. सो एज अ स्मार्ट ट्रेडर, एज अ कॉन्फिडेंट ट्रेडर, वी वर नॉट पैनिक्ड बिकॉज हमको मालूम था ये क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे, इसलिए मुझे एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा एंड वी फाइनली गॉट इट. अब हमें देखना है कि इसका वीकली चार्ट पे, मतलब फॉर अ मंथ और सो, इसका ओवरऑल ट्रेंड लॉन्ग टर्म के व्यू से कितना है. नाउ परफेक्ट. सो अभी देखो आप एग्जैक्टली यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है विच वाज ऑन 8th of August. तो अगर किसी ने फ्यूचर की पोजीशन 8 अगस्त को, सी जो 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं उनको 50 रुपये का 100 रुपये का मूवमेंट मिलता है. जो 15 मिनट ट्रेड करते हैं उनको जो 100 से 150 रुपये का मिलता है. जो 1 आवर पे मूव करते हैं उनको 200-300 रुपये का मिलता है. बट जो बड़े चार्ट पे यूज़ करते हैं, बड़े नॉलेज से ट्रेड करते हैं, बड़े पैसे के लिए ट्रेड करते हैं, दे मेक रियल मनी. सो इफ़ यू सी, किसी ने अगस्त में अगर ये पोजीशन बनाई होती थी वॉचिंग दिस वीकली चार्ट, एंड उसने अगर फ्यूचर खरीदा होता था सितंबर का एट 16,700, he has made 18,000, मतलब ऑलमोस्ट अप टू 18,000 तक इन्होंने प्रॉफिट लिया. तो 16,600 से 18,000 तक का सफ़र उन्होंने किया. 1,400 रुपये का फ्यूचर्स में उन्होंने एक महीने में ट्रेड करके कमा लिया. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ मूविंग इंडिकेटर. यहाँ पे भी देखो अब ब्रेकआउट हुआ है. यहाँ पे 9 डेज का 18 डेज को क्रॉस किया. जैसे इसने क्रॉस किया 9 डेज को, 9 डेज ने 45 डेज को भी क्रॉस किया. सी द क्रॉस ओवर, यू हैव टू जस्ट कीप एन आई ऑन द क्रॉस ओवर. जब भी ये क्रॉसओवर, शॉर्ट टर्म क्रॉसओवर इज क्रॉसिंग इट्स लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, उसमें मोमेंटम ऊपर की तरफ रहेगा. सो अभी भी वीकली चार्ट पे आप देख लो, इट इज अबव 200 मूविंग एवरेज जो यहाँ पे है. इट इज अबव 18 डेज मूविंग एवरेज, इट इज अबव 45 डेज मूविंग एवरेज, और इट इज अबव 9 डेज मूविंग एवरेज विच इज 17,500. तो जब तक इस महीने में निफ्टी 17,500 के नीचे ट्रेड करना नहीं शुरू करता है, तब तक हम निफ्टी में बुलिश रहेंगे फॉर अ हायर पोजीशन. सो जब निफ्टी 17,500 के नीचे ट्रेड करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये अपने ऑन अ वीकली चार्ट ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, यानी कि इसमें थोड़ा बेयरिशनेस आ रहा है. अगर उसने क्रॉस किया, क्रॉस डाउन हुआ, अगर ये वीकली चार्ट पे, अगर ये रेड लाइन जो है विच इज 18 डेज का मूविंग एवरेज, इट इज अ क्रॉस डाउन, तब आप आराम से आप नेक्स्ट मंथ का या फिर फॉर सब दूर की तारीख का आप ले लो पुट, या फिर नेक्स्ट मंथ की सीरीज का आप फ्यूचर बेचो, यू विल मेक मनी. आई गिव यू माई वर्ड फॉर दैट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर. आप इसको ही यूज करो, आप कोई दूसरा इंडिकेटर यूज करो ना करो, कर भी सकते हैं फॉर टेकिंग सम रेफरेंस, बट दिस इज द इंडिकेटर विच विल मेक यू अर्न मनी on every type of trade you take. You want to take a swing trade, you want to take a quick trade, you want to make some, for the entire day you want to keep a trade. This will not fail you. This will make you earn money. So I hope मैंने ये ज़्यादा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, because I had to share my inputs about moving average on each and every chart.
ऑन टाइमली चैट, इसके लिए वीडियो लंबा हुआ है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मुझसे भी कहीं अगर कुछ गलती हो या मुझे यू वांट टू गिव सम एडवाइस, प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स, एंड I hope this helps you if you watch this video, to take better trades, and you can just take reference of this video if tomorrow what I have said and what I have analyzed for tomorrow trade, if that falls in place. So with that note, thank you very much, and again I would request you to help me on my initiative. Please like and subscribe my video so that I can share my inputs for better trades in coming days. So with that note, thank you very much. Good night. Jai Hind, Jai Maharashtra.